Hello children, welcome to the e-learning classes by GMS the School Pushkar. So today we will discuss our geography section of social studies, and this is our first chapter, that is our environment. Okay, this is the first chapter of our geography section, that is our environment. Okay, let's start discussing that is environment. We start the chapter with the definition of environment: place, thing and nature that surround any living organism, that is our basic life support system. So here at the first is definition is that place, thing and nature that surround any organism is called environment. Okay, and then we have see that it is our basic life supporting system. So the environment is the basic life supporting system. Okay, now then we see our that now here it provides us air, water, land, food एक्सेट्रा. ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? एयर, वाटर, लैंड एंड फूड प्रोवाइड करवा रहा है. इट इंक्लूड all elements, factors and conditions that have some impact on growth and development of certain organism. जो भी organisms है उनके कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के लिए जो भी एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, फैक्टर्स की नीड होती है, कंडीशंस की नीड होती है, तो वो सब हमें किससे प्रोवाइड होती है? एनवायरनमेंट से प्रोवाइड होती हैं. ओके, वो हमें कैसे प्रोवाइड होती है? एनवायरनमेंट से. सो जो हमारे एनवायरनमेंट की डेफिनेशन थी वो हमने यहाँ देखी कि प्लेस, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक ऐसी जगह जिसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सराउंड कर रखा है, अपनी चारों ओर से घेर रखा है. सो दैट इज़ एनवायरनमेंट. देन हमने कहा कि ये हर एक लाइफ के लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम है. ठीक है, कोई भी लाइफ हो एनीवेयर, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो और बड़े जो भी एनिमल्स हैं, सबके लिए, तो उन सब के लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है ये. Then environment can be divided into two parts. Environment can be divided into two parts. Okay, so the first is natural environment and the second is man-made environment. So natural environment, basic and abiotic condition of the earth. Biotic and abiotic condition of the earth. मैंने गलत बोल दिया था. That natural environment is biotic and abiotic conditions of the earth, and man-made environment is activities, creation and interaction among human beings. So man-made environment क्या हुआ? ऐसी एक्टिविटीज़, ठीक है, क्रिएशंस हुई, कुछ इंटरेक्शन हुआ जो कि ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट के बीच होता है, तो दैट इज़ एन man-made environment. Man-made environment. Okay. The physical and biological components of environment interact with each other and produce certain changes which create favorable condition for human being to live on earth. So यहाँ हम देखते हैं कि these physical and biological components, एनवायरनमेंट के जो फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं और कुछ ना कुछ चेंजेस प्रोड्यूस करते रहते हैं, जो कि क्या होते हैं? फेवरेबल होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए. कि जो अर्थ पर कोई भी तरह के कंडीशंस होते हैं तो वो सब क्या है? ह्यूमन बीइंग्स के लिए फेवरेबल हो, इसी तरह से वो चेंजेस करते रहते हैं. Now let's talk about atmosphere. Atmosphere, layer of gases surround the earth. Atmosphere is the layer of gases surround the earth. गैसेस की लेयर्स जिन्होंने अर्थ को अपने चारों ओर से सराउंड कर रखा है. देन एटमोसफियर कंटेन मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. सो हेयर वी सा दैट एटमोसफियर में कई सारी गैसेस का मिक्सचर है. दैट नाइट्रोजन, उसका अमाउंट है 78%, ऑक्सीजन उसका अमाउंट 21%, आर्गन दैट इज 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 0.04%.
percentage. Okay. It also contain variable amount of water vapor and smoke particle. So इन गैसेस के अलावा हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर वाटर वेपर भी प्रेजेंट है और स्मोक पार्टिकल भी प्रेजेंट है. द अर्थ एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसे हमने 5 लेयर्स में डिवाइड किया. दैट इज़ द ट्रोपोस्फेयर, द एक्सोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर एंड द फिफ्थ इज थर्मोस्फेयर. Okay, so let's see the 5 layers of the earth atmosphere, that is troposphere, exosphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. Okay, so let's talk about these layers or that are troposphere. Troposphere weather happen. So let's check here. Okay, this is here. सो ये दिस इज़ आर अर्थ. ओके, ये हमारी अर्थ है. ओके, सो जो फर्स्ट लेयर आती है जो कि 12 to 18 किलोमीटर्स तक रहती है. दैट मीन यहाँ हमारी अर्थ सरफेस से लेकर आगे 12 to 18 किलोमीटर्स तक रहती है. सो दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर. ओके, सो जहाँ जो कुछ भी बादल बनने होते हैं तो वो सब कहाँ बनते हैं? ट्रोपोस्फेयर पर बनते हैं. देन वी सा स्ट्रेटोस्फेयर. सो आपको स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ आपको मिलेगी ओजोन लेयर. ओके, ओजोन लेयर. ठीक है, सो ये दो चीज़ समझ आ गई. दैट ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर. Above the layer of stratosphere we find mesosphere. After the mesosphere the next layer is thermosphere and then exosphere, that is outer surrounding. Okay, जहाँ कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें जा सकती हैं यहाँ इन्होंने बता रखा है. लाइक ट्रोपोस्फेयर में वी सी हॉट एयर बलून एंड एरोप्लेन. ओके, देन स्ट्रेटोस्फेयर में हम देखते हैं कि ये रेडियोसोनेट्स मिल सकते हैं हमें. ओके, और देन मीजोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर में आपको ऑरोना एंड दीज काइंड ऑफ सैटेलाइट्स यू कैन फाइंड. एंड देन इन द एक्सोस्फेयर यू कैन फाइंड स्पेसशिप. बिकॉज स्पेसशिप को तो बिल्कुल आउटर प्लैनेट पे ही जाना रहता है. सो दैट इज़ वाई दैट जो एक्सोस्फेयर पर हम स्पेसशिप को भी देख सकते हैं और सैटेलाइट्स को भी देख सकते हैं. ओके, एंड मीजोस्फेयर पर हम देख सकते हैं मेट्रोलॉजिकल रॉकेट्स. ओके, ये सब देख सकते हैं हम लोग. एंड इधर हम देख सकते हैं मीजोस्फेयर पर मीटियोर्स. सो दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. आई होप आपको ये समझ आया होगा दैट दिस इज़ आर अर्थ. अर्थ के ऊपर जो सबसे पहली लेयर है दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर. अबव द ट्रोपोस्फेयर वी फाइंड स्ट्रेटोस्फेयर. आफ्टर द स्ट्रेटोस्फेयर वी विल फाइंड मीजोस्फेयर and then it is thermosphere. After thermosphere you will find exosphere. Okay, एक्सोस्फेयर. एक्सो का मीनिंग ही अपने आप में होता है दैट इज़ आउटर सराउंडिंग. सो दैट इज़ वाई हम इसे हमारी जो लेयर्स ऑफ अर्थ है उनके पर्टिकुलर नेम्स में इन्हें नहीं रखते हैं. दैट हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड that is troposphere, stratosphere, mesosphere and then thermosphere. So this is the whole structure and the layers of the earth. Layers of the atmosphere. This is not layer of earth, this is the layer of atmosphere. Okay, this is the layer of atmosphere. Just read this. कभी कभी बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हमारी टंग फिसल जाती है. सो प्लीज़ रीड दिस. layers of atmosphere. Okay, this is the layer of atmosphere. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Okay, now let's come थोड़ा फिर से पीछे चलते हैं. that
मैं आपको कुछ डायग्राम के साथ बताना भूल गई थी. सो दैट हियर एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट वाज नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट. सो दिस इज हियर दैट एनवायरनमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. दैट द फर्स्ट वाज नेचुरल एंड human made environment. So here biotic and abiotic components of natural environment, that biotic environment or biotic components make whole biosphere. Then we see abiotic components. Abiotic components से बनता है lithosphere, hydrosphere and atmosphere. And this is human environment. ह्यूमन एनवायरनमेंट के दो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, दैट आर पॉजिटिव एंड दैट इज़ नेगेटिव. सो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो होते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं दैट कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं दैट आर वेरी यूज़फुल फॉर अस. तो हम उन्हें एक ही जगह से, जैसे उसकी पर्टिकुलर जो फार्मिंग है एक ही एरिया में हो सकती है, सो वी जस्ट ट्राई दैट कि उसी की जो फार्मिंग हो एक ऐसे एरिया में भी हो सके जहाँ नहीं हो पा रही है. सो दैट इज़ द पॉजिटिव फैक्टर. एंड देन नेगेटिव इम्पैक्ट, दैट इज़ यू कैन सी द pollution. The major negative impact of human made environment, that is pollution. Okay, first is pollution, second is आज हम लोग जो एनिमल्स हैं उनका जो लिविंग सराउंडिंग्स हैं उन्हें भी उनसे छीनते जा रहे हैं. तो दैट इज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट. ओके, सो आफ्टर दिस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर एक और चीज़. layers of atmosphere. At first this is atmosphere. that एटमॉस्फेयर में हमने गैसेस देखी थी दैट वाज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो हेयर द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यू कैन सी द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके, सो दिस इज हेयर atmosphere, composition of atmosphere. Okay, after that you can see that यहाँ हम देख रहे हैं कि 78% जो है यहाँ पर नाइट्रोजन है. 78% गैस कौन सी प्रेजेंट है? नाइट्रोजन. देन कार्बन डाइऑक्साइड इज हेयर. देन 21% इज ऑक्सीजन एंड आर्गन इज 0.93 and or so many all other gases are 0.04%. Okay, then I had explained you the layers of the atmosphere, that the troposphere, exosphere, stratosphere, mesosphere and the thermosphere. So यहाँ जो है हमारा सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो गया है. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर वेदर हैपन. ट्रोपोस्फेयर जो आपने देखी थी दैट इट वाज ट्रोपोस्फेयर, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस जगह पर बादल आ जाते हैं. ठीक है, सेकेंड लेयर वाज स्ट्रेटोस्फेयर. सो स्ट्रेटोस्फेयर पे मैंने बताया था यहाँ पर आपको एक ओजोन लेयर मिलेगी. ठीक है, दैट इज़ ओजोन लेयर आपको मिलेगी जो आपको किससे प्रोटेक्ट करेगी, दैट इज़ ओजोन लेयर. ठीक है, तो ये सारी क्या है? ओजोन लेयर, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर पे मिलती है आपको. आफ्टर दैट मीजोस्फेयर, यहाँ आपको मीजोस्फेयर रहेगा. मीजोस्फेयर के बाद आपके रहेगा थर्मोस्फेयर. आफ्टर थर्मोस्फेयर यू विल फाइंड एक्सोस्फेयर. ओके, दिस इज द डायग्राम you can see here, that it is thermosphere, troposphere and then stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Okay, troposphere, you can see troposphere and then stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Okay, देन यहाँ हमने यहाँ देख लिया, पूरा स्टडी कर ली. दैट स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर प्रेजेंट इन दैट एब्जॉर्ब द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे. सो आपको अगर पूछे स्ट्रेटोस्फेयर में क्या जो प्रेजेंट है, तो दैट इज़ ओजोन लेयर प्रेजेंट है. और ओजोन लेयर का क्या वर्क है कि जो वो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है उसे एब्जॉर्ब करती है.
Then mesosphere is nothing much. It is the next layer to stratopause or stratosphere. Then exosphere, outermost layer of the environment. Exosphere is the outermost layer of the environment. Okay.